رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب میری قرآن کے ساتھیوں؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی. آمین ثم آمین. میں اسرت القرآن کی جانب سے آپ سب کا دور قرآن 2021 کی محفل میں ویلکم کرتی ہوں. آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے اور اس کے ترجمے سے، جو پیش کریں گی ہماری ساتھی ہماری بہن سسٹر عافیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اعراف آیہ نمبر 11 to 13. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ترجمہ: اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری شکل بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. اللہ نے کہا کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کس سبب نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ اس نے کہا میں اس سے اچھا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو آکاش سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ آکاش میں رہ کے گھمنڈ کرے، اس لیے نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر بہن عافیہ. اب میں انوائٹ کرتی ہوں ہماری پیاری سی ٹیچر روزی باجی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم. الحمدللہ ہم لوگ ابھی سورہ اعراف میں پہنچ گئے ہیں. تو پچھلے سورہ انعام میں ہم لوگ کیا دیکھا کہ اللہ کے توحید کے طرف توحید کو اچھا سے سمجھایا گیا. سورہ انعام بھی مکی سورہ اعراف بھی مکی سورہ، اور یہ سورہ اعراف بھی مکی دور کا آخر حصہ میں ہی نازل ہوا تھا. تو مکی سورہ کا جو کریکٹرسٹک ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں توحید کے بارے میں، رسالات کے بارے میں، اخراط کے بارے میں زیادہ تر بات رہتے ہیں. تو پچھلے سورہ انعام میں اللہ کے توحید کو اچھا سے سمجھایا گیا، اور یہ سورہ اعراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی رسول کے پیروی کے طرف، یعنی فالو کرنے کے طرف دعوت دیا گیا. یہ سورہ کا جو سینٹرل تھیم وہ ہے رسالہ. تو لیکن یہ جو دعوت رسول کے پیروی کے طرف جو دعوت، اس میں ڈراؤنی اور چیتاونی زیادہ ہے. تو الحمدللہ ہمارے پیارے ٹیچر یسٹرڈے کچھ آیات یہ سورہ کا انٹروڈکشن دے چکے ہیں اور کچھ آیات بھی پڑھ چکے ہیں. آلموسٹ ایک رکوع کل ہم لوگ پڑھ لیے ہیں. اور پہلا رکوع میں ہم لوگ کیا دیکھا؟ پہلا رکوع میں ہم لوگ دیکھا کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کی ایمان والوں کو یاد دہانی کے لیے.
और इंसान को चेतावनी देने के लिए कि अपना अपना अमल का अंजाम के बारे में चेतावनी कि जजमेंट यानी बदला का दिन होकर ही रहेगा। उस दिन क़यामत के दिन, जजमेंट के दिन ओजोन भी ठीक ठाक होगा, जिसका पलड़ा हल्का भारी होगा वो तो कामयाब, और जिसका पलड़ा हल्का होगा वो तो नुकसान में। तो ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। देखते हैं आज आयत नंबर 10 में क्या है। आयत नंबर 10 तर्जुमा। और हमने तुमको जमीन में रहने का जगह दिया और उसमें तुम्हारे लिए सामान्य जिंदगी बनाया, तुम बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। यहाँ भी हम देखें कि अल्लाह क्या बोल रहे हैं, बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। तो शुक्रिया अदा करना, अल्लाह ने हमें इतना कुछ सामान्य जिंदगी दिया, जमीन में रहने की जगह भी दिया, लेकिन शुक्रगुजार बनने के लिए अल्लाह फरमा रहे हैं क्या आज सुबह से लेकर अभी तक हमने अल्लाह के तरफ कोई शुक्रिया अदा की? क्या शुक्रिया करने का कोई वजह बने, कोई रीजन है? कोई रीजन आज हुआ कि हम खुशी हो जाए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें? अगर हम देखें तो जरूर है, शुक्रिया अदा करने का वजह है। हमने रात में नींद में चले गए थे। नींद यानी छोटी मौत। सूरा अनाम में हम लोग पढ़ के आए हैं, नींद यानी छोटी मौत। तो छोटी मौत को अल्लाह ने बड़ी मौत में बदल नहीं दिया। सुबह हम लोग को छोटी मौत यानी नींद से उठे और अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है ताकि हम इस्लाह करें, नेकी के काम और थोड़ा ज्यादा कर ले, अल्लाह को पैगाम को फैलाए, तरह तरह की नेकी की काम करे। अल्लाह ने हमें मोहलत दी है। तो यही तो है शुक्रिया अदा करने का एक बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा वजह। चलते हैं हम नेक्स्ट रुकू के तरफ। आगे की जो आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 25 तक और एक रुकू है, जो ये सूरा का सेकेंड रुकू। ये रुकू में ये जो दूसरा रुकू, इसमें मेनली क्या बताया गया है? मेनली एक ही किस्सा है, कहानी। कौन सा? इंसान का पैदा यानी इंसान का जो क्रिएशन वो, और शैतान इब्लिस जो अपोज किया था, इब्लिस जो नाफरमानी किया था, ये किस्सा ये सूरा में फिर से बयान हुए हैं, जो कि हम लोग सूरा बकरा में भी पढ़ चुके हैं वो चीज। आयत नंबर 11। और हमने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सभी ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के कि वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा कि जब मैंने तुझे सजदा करने का हुक्म दिया तो किस सबब ने तुझे सजदा करने से रोक दिया? उसने कहा मैं इससे अच्छा हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सूरा बकरा में भी हम ये चीज पढ़े हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का किस तरह बनाया गया, फिर फरिश्तों को सजदा के लिए बताया गया, फरिश्तों ने किया, लेकिन इब्लिस जिन है, इब्लिस जिन लेकिन फरिश्तों के साथ रहते थे, तो उसने सजदा नहीं किया। तो यहाँ भी हम देखते हैं अल्लाह का आदल और इंसाफ, अल्लाह का आदल और इंसाफ। देखो, इब्लिस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह तुरंत उससे पनिशमेंट नहीं की, बल्कि उससे पूछा कि तूने क्यों सजदा नहीं किया, कौन सा चीज तुझे रोक दिया, बता मुझे। तो अल्लाह ने चाहते तो तुरंत पनिशमेंट भी, सजा भी दे सकते थे। अल्लाह ही मालिक है, लेकिन अल्लाह ने इतना अदल, इतना इंसाफ कि अल्लाह ने उससे पूछा कि बता। तो इब्लिस ने क्या बताया कि मैं अच्छा हूँ, आना खैरुन। ये चीज तमाम जो नुकसान का जड़ है, आना इटसेल्फ, ये वर्ड तकब्बुर के लिए यूज होता है। ये बहुत सारे खसारा का, बहुत सारे नुकसान का रूप यही है कि आना खैरुन। और ये आना खैरुन, मैं ही बेहतर हूँ, ये चीज अगर हम में और आप में आ गए हैं तो ये भी हम समझ ले ये शैतानी ख्यालात है। ये शैतान यानी इब्लिस का ये ख्याल है कि आना खैरुन, मैं ही बेहतर हूँ। हु सेड, किसने बोला, किसने कहा कि आना खैरुन, मैं बेहतर हूँ? किसने बोला? किसी ने नहीं बोला।
तो उसने इसका रीजन भी क्या दिया कि मुझे तो आग से बनाया गया और आदम को मिट्टी से। तो ये जो रीजन वो बताया, तो ये भी किसने बोला कि मिट्टी से आग ज्यादा अच्छा है? आग का जो काम आग वो काम करते हैं, अल्लाह ने आग में जो सिफत रखे हैं आग उसी हिसाब से वो सिफत को पूरी करते हैं। अगर हम देखें, अगर हम जाहिरी तौर पर भी देखें तो जमीन का ज्यादा काम, ज्यादा फायदा हमें जमीन से मिलते हैं। अगर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आग से ज्यादा जमीन से ही हमें मिलेगा। और किसी ने तो नहीं बोला, कुरान में या कोई जगह में इसी तरह तो नहीं बताया गया कि आग ज्यादा बेहतर है। तो ये जो इब्लीस ने बताया है, ये उसका मनगढ़ंत ख्यालात, गुमान, जो कि हम सूरह अनाम में बार बार पढ़ के आए हैं। जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं, नेकी समझ के भी कर रहे हैं, वो उसका मनगढ़ंत ख्यालात। यहाँ भी हम देख रहे हैं जो इब्लीस ने खुद को बेहतर समझा और मिट्टी से आग को भी बेहतर समझा। ये चीज किसी ने नहीं बोला, ये उसका मनगढ़ंत ख्यालात है, उसका गुमान है। तो यहाँ हमें भी मुहस्बा करने का है। इसी तरह बेबुनियाद अपना मनगढ़ंत ख्यालात हम में तो नहीं है। हम तो अपना आपको खुद ही अच्छा नहीं समझते। जिस तरह अगर हम इसी तरह समझे तो वो भी इब्लिस जैसा ख्यालात होगा। नेक्स्ट आयत, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तू आसमान से उतर, तुझे कोई हक नहीं कि आसमान में रह के घमंड करे, इसलिए निकल, बेशक तू जलीलों में से है। तो ये उसने कहा कि मुझे क़यामत तक मौका अता कीजिए जब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि तुझे मौका अता कर दिया गया। तो इब्लिस ने जब घमंड, जब तकब्बुर की, जबकि उसका सबसे बड़ा ये क्या था, सजदा नहीं किया, ये तो अल्लाह का नाफरमानी की। फिर अल्लाह का फैसला के ऊपर अपना फैसला वो पुट किया, अपना फैसला वो दिया है कि वो खुद को बेहतर समझा। यानी अल्लाह के फैसला जो था उसके ऊपर उसने फैसला की। अल्लाह को इनकार नहीं किया, बट अल्लाह का नाफरमानी किया और अल्लाह का फैसला के ऊपर वो खुद फैसला लिया। तो हम इसी तरह करते हैं क्या नहीं, ये भी हमें मुहस्बा करने का है। और ये अपना आयत नंबर 16 में फिर इब्लिस ने मोहलत मांगा था कि मुझे मोहलत दीजिए। यहाँ मौका बताया गया, मौका यानी मोहलत भी, और जो काम वो करना चाहता है वो काम करने का मौका भी। आयत नंबर 16, शैतान ने कहा तेरे मुझको धिक्कारने के सबब मैं उनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, फिर उनके सामने और पीछे से और दाएं और बाएं से हमला करूंगा और आप इनमें ज्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ने जब उसे मौका दिया है तो उसने भी अल्लाह को यह चुनौती दिया कि आपने आदम के लिए, इंसान के लिए मुझे धुतकारा, मुझे आसमान से नीचे उतार दिया, तो हम इंसान सीधे रास्ते पर चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से बैठ जाऊंगा, उसे बहकाऊंगा और आप उन लोगों में ज्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। तो यानी इंसान को जो उसका अमल खुशनुमा बनाकर दिखाऊंगा। जो सूरह अनाम में भी हम यही पढ़े कि जो काम हम करते हैं शैतान उसे खुशनुमा बनाकर, अच्छा बनाकर दिखाते हैं। लगता है मैं जो कर रही हूँ वो ठीक ही है, खुशनुमा बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ भी हमें मुहस्बा करने का है कि ये जो चुनौती क्या ये हम समझ पाते हैं? कभी दिल में कुछ बद ख्यालात आए तो जरूर हमें समझ लेना चाहिए कि ये शैतान के तरफ से है। शैतान ने जो वादा किया कि हम बहकाऊंगा, तो वो उसी वादा का पूरा करने के लिए ये वसवसा दे रहे हैं। तो ये चुनौती हमें समझना चाहिए। और आयत नंबर 16 में शैतान ने कहा कि तेरे मुझको धिक्कारने के सबब
यानी शैतान ने खुद गलती की तो अल्लाह ने उसे आसमान से नीचे उतार दिया, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि तूने मुझे धुतकारा। तो यहाँ भी हमें देखने का है कि हमने भी खुद गलती करके वो इल्जाम दूसरे पर तो नहीं लगाती हूँ। अगर खुद गलती करके वो इल्जाम दूसरा पर लगा रहे हैं, वो भी इब्लिस का काम होगा। इब्लिस ने यही किया, वो खुद गलती किया, अल्लाह का नाफरमानी की, फिर अल्लाह को बता रहे हैं आपने मुझे धुतकारा। हाँ, तो अपना खुद गलती करके दूसरे पर इल्जाम ना थोपे। और अल्लाह ने उसे जो मौका दिया था, ये अल्लाह ने मौका दिया कि क़यामत तक, लेकिन शर्त के साथ। ये सूरा में वो शर्त की बात नहीं है, हम बनी इसराइल में पढ़ेंगे। अल्लाह ने ये बताया था कि तुझे मौका दिया गया, लेकिन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा काबू और वश नहीं होगा। जो खालिस बंदा है उस पर तेरा वश नहीं चलेगा। तो हमें भी जो इखलास के साथ अल्लाह का फरमाबरदारी पर जम जाना चाहिए, तो शैतान कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। आयत नंबर 18, अल्लाह ने कहा तू यहाँ से जलील और खार होकर निकल जा, जो उनमें से तेरी इत्तिबा करेगा मैं तुम सभी से जहन्नम को जरूर भर दूंगा। और हमने कहा कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से मर्जी हो खाओ, और इस पेड़ के करीब ना जाओ, नहीं तो जालिम हो जाओगे। तो शैतान का तो हो गया, उसे आसमान से निकाल दिया गया, उसे मोहलत भी दिया गया, बता दिया गया, वो भी चुनौती दी। अल्लाह ने ये सूरा में नहीं बट दूसरा सूरा में बताया कि खालिस बंदे पर तेरा बस नहीं चलेगा। तो वो तो निकाल गए। अभी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या हुक्म दे रहे हैं, ये आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से जो चीज चाहे दिल चाहे तुम खाओ, सिर्फ एक पेड़ के पास ना जाओ, मत जाओ, अगर जाओगे तो जालिम बन जाओगे। ला तक़रबा हाज़िही शजारता फतकूना मिना ज़ालिमीन। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि अल्लाह ने हर चीजें में कुछ डू और डू नॉट्स रखे हैं। ये इम्तिहान के तौर पर, ये इम्तिहान के लिए। वो शजर के पास अगर जाए तो क्या होगा, क्या वो तो अल्लाह ने फिक्स करके रखे हैं, लेकिन हर चीजें में एक हद है और एक फर्माबरदरी है। कुछ डू करने का होता है, कुछ चीज करने से रोक जाना है। तो अल्लाह ने जो चीज करने का हुक्म दिया वो करे, और जिस चीज से रोक लिया उससे रुक जाए। तो इम्तिहान के तौर पर यह हुक्म दिया गया था। नेक्स्ट आया, फिर शैतान ने दोनों में वसवसा पैदा किया, ताकि दोनों के लिए उनकी शर्मगाहों को जाहिर कर दे, और कहा कि तुम दोनों के रब ने तुम्हें इस पेड़ से इसीलिए रोका है कि तुम दोनों फरिश्ता हो जाओगे या हमेशा रहने वाले हो जाओगे। उसने उन दोनों के सामने कसम खाई कि मैं तुम दोनों का खैर खा हूँ। यानी वसवसा क्या होता है, धीमी आवाज और बुरा जो बहुत बुरा कुछ चीज दिल में जो डाल देते हैं धीरे धीरे धीमी आवाज से, वो वसवसा होता है। वो भी शैतान की तरफ से ही होता है। तो वसवसा पैदा की, और दोनों ने शजर के पास गए थे, और तो इसीलिए, और यहाँ इब्लिस ने 3 रीजन दिखाया है। क्या बोला है कि अल्लाह ने किस लिए रोका, कि तुम फरिश्ता हो जाओगे, नहीं तो हमेशा रहने वाले हो जाओगे, हम तो तुम्हारा खैर खा हूँ, यानी वेल विशर हूँ। तो कसम खाकर ये चीज कहा था। तो यहाँ हमें भी मुहस्बा करने का है कि हमने इसी तरह कसम खाकर किसी को मिसगाइड तो नहीं करते हैं। लास्ट सूरा में भी हम पढ़े कि दूसरे को शक में ना डालो। इसी तरह मिसगाइड करके झूठा कसम खा के इसी तरह मिसगाइड हमने तो किसी को नहीं करते। यहाँ से हमें भी ये सबक लेने का है। नेक्स्ट आयत जो है, इस तरह धोखे से दोनों को नीचे लाया। जैसे ही दोनों ने पेड़ का जायका लिया, यानी टेस्ट लिया, दोनों के लिए उनके शर्मगाह जाहिर हो गए, और वो अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। और उनके रब ने दोनों को पुकारा कि क्या मैंने तुम दोनों को इस पेड़ से नहीं रोका था, और तुमसे नहीं कहा कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है।
तो यहाँ हो गया शैतान का ये पहला हमला। शैतान वो पहले हमला किया हुआ था, उसने इंसिस्ट की और जायका लिया यानी टेस्ट लिया, और इसी का एज अ रिजल्ट किया हुआ, अंजाम किया हुआ, वो ड्रेस निकल गया और वो नेकेड हो गए। तो वो दोनों ने तुरंत जन्नत यानी बागात वहां से दूसरा कुछ भी पत्ता लेकर खुद को छुपाया। तो तुरंत अल्लाह ने भी पुकारा कि क्या मैंने तुम्हें ये पेड़ के पास जाने से के लिए मना नहीं किया था, यानी फर्माबरदरी से तुम भी निकल गए हो, तुम्हें माना किया था, इसके बावजूद तुमने उसका वसवसा में आ गए, जबकि ये भी बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो शैतान हमेशा पहले तो वो कैसे इंसिस्ट किया कि इसी में तुम्हारा भलाई है, तुम फरिश्ते बन जाओगे, अगर उसी पेड़ के पास जाओगे तो फरिश्ते बन जाओगे, हमेशा रहने वाले बन जाओगे, मैं ही तुम्हारा खैर खा हूँ, वेल विशर हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। इसी तरह धोखा दिया है। तो उसका वो जो काम करा लेते हैं वो खुशनुमा बनाकर, अच्छा बनाकर दिखाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग कोशिश करना होगा, हमेशा अलर्ट रहना होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम ये भी हमेशा पढ़ते रहे। और यहाँ अल्लाह ने जो फरमा रहे हैं, रब ने दोनों को पुकारा, तो अल्लाह ने वो दोनों को पुकारा, हमें भी ये कुरान में पुकार कर कितना इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये चीज करो, ये चीज से रुक जाओ। तो अपना रब का ये पुकार क्या हम सुनते हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं? ये जो अल्लाह ने कुरान के जरिए हमें भी तमाम इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये भी पुकारी है ना। तो अल्लाह का ये पुकार क्या हम सुनते हैं? नेक्स्ट आयत जो है कि दोनों ने कहा, हमारे रब हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, और अगर तूने हमें माफ नहीं किया और हम पर रहम नहीं किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ है जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के बारे में है, जब अल्लाह ने इसी तरह बोला कि शैतान का वसवसा में आ गए, गलत काम कर ली, तो अल्लाह ने ये तौबा सिखाया और वो दोनों ने ये तौबा किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ है, ये दुआ हमें याद करके पढ़ना भी चाहिए। ये एक तौबा भी है, अल्लाह की तरफ रुजू होना भी, तौबा की मतलब ही वही होता है। तो यहाँ हम अगर हम कंपेयर करें तो क्या देख रहे हैं कि जो सूरा बकरा में देखा, फरिश्तों को जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बोला था, फरिश्तों ने कुछ बात अल्लाह से किया था, फिर अल्लाह ने जब बोला फरिश्तों को कि मैं जो जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते, तो तुरंत फरिश्तों ने क्या कहा था? सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, यानी अल्लाह आप पाक हो, आप हमें जो सिखाया हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। ये फरिश्तों का किरदार है। फिर देखो शैतान को अल्लाह ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, उसने नाफरमानी की, अल्लाह ने पूछा क्यों नाफरमानी की? उसने तकब्बुर की, ये उसका किरदार है। और आदम अलैहिस्सलाम, इन लोगों ने भी गलती की, अल्लाह ने बताया तुम्हें मना किया था, तुमने तब भी उस पेड़ के पास गए हो, शैतान का धोखा में आ गए हो। आदम अलैहिस्सलाम भी तुरंत तौबा की। तो ये इंसान का किरदार है। तो फरिश्ता, शैतान और इंसान, फरिश्ता भी अल्लाह का बड़ाई बयान की, हमद की, तस्बीह की, इंसान भी तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू की। और शैतान, उसने घमंड की, तकब्बुर की, अल्लाह का फैसला के ऊपर अपना फैसला को रखे। तो ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तौबा भी है, ये जो आयत, इसे याद करके हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आयत, अल्लाह ने कहा तुम नीचे उतरो, यानी आदम अलैहिस्सलाम इन लोगों को कह रहे हैं अभी, तुम नीचे उतरो, तुम आपस में दुश्मन हो और तुम्हें एक वक्त तक जमीन में रहना और फायदेमंद होना है। कहा कि तुम उसी में जिंदगी गुजरोगे और उसी में मरोगे, उसी से निकल जाओगे। ये सूरा बकरा में भी देखा, दुनिया में रहना है, वलकुम फिल अर्दी मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हिन, यानी कुछ मुकर्रर वक्त तुम्हें दुनिया में रहने का है, वहाँ कुछ फायदा का सामान है। और यहाँ क्या बता रहे हैं कि वहाँ जमीन में, दुनिया में जिंदगी गुजरोगे, फिर वहाँ मरोगे और वहीं से तुम निकाल जाओगे, यानी जमीन से ही निकाले जाओगे। फिर ये नेक्स्ट
नेक्स्ट आयत जो है आयत नंबर 26, यहाँ से लेकर 31 तक तीसरा रुकू शुरू हो रहे हैं। यहाँ ये रुकू में हम मेनली क्या देखेंगे कि चेतावनी, होशियारी है। दोनों आदम को होशियारी दिया गया, वार्निंग दिया गया किस बारे में, कि शैतान का जो साजिश, शैतान का जो प्लान या प्लॉट, उससे बचने के लिए। तो पहला हमला, शैतान ने जो पहला हमला किया आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर, उसका अंजाम क्या हुआ था, वो नेकेड हो गया था, फिर पत्तों से वो खुद को छिपाया। तो अगले आयत में अल्लाह का हुक्म, अल्लाह क्या हुक्म दे रहे हैं हम देखते हैं। आयत नंबर 26, ये आदम के बेटो, हमने तुम्हें ऐसा कपड़ा अता किया जो तुम्हारे शर्मगाहों को ढाके और जीनत दे, और परहेजगारी का कपड़ा ही अच्छा है, यह अल्लाह की निशानी है ताकि वो याद पड़े। तो उसके बाद अल्लाह ने लिबास के बारे में बोल रहे हैं। जो लिबास का रीजन भी यहाँ 2 दिया गया, क्या है, एक शर्मगाहों को ढाके और जीनत दे। सिर्फ शर्मगाहों को ढकना तो है ही, बट जीनत भी को हम कुछ देखते हैं ना, जो सन्यासी सिर्फ पतला एक पट्टी लगा के शर्मगाहों को तो ढक लेते हैं, लेकिन हम लोग उनके तरफ अगर दिख गए रास्ता में तो हम लोग अपना नजर हटा लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई जीनत नहीं है, यानी फुल्ली कवर्ड होना चाहिए। तो अल्लाह यहाँ वही फरमा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि परहेजगारी का कपड़ा अच्छा है, वा लिबासु तकवा ज़ालिका खैर, बेहतरीन लिबास है तकवा। सूरा बकरा में तकवा को बेहतरीन जादेरा कहा गया था, ये सूरा में तकवा को बेहतरीन लिबास कहा गया है, क्योंकि हमारा जिस्म को, बॉडी को ढकने के लिए जो कपड़ा है, लिबास है, लेकिन हमारा जिस्म के साथ हमारा रूह भी होता है। तो रूह, ये जो रूह का जो ड्रेस होता है वो है तकवा। हम में परहेजगारी रहेंगे तो अभी हम ये लिबास के बारे में जो सारे इंस्ट्रक्शन है हम फॉलो करेंगे। तो दिल में तकवा होगा, तब हम परहेजगारी भी इख्तियार करेंगे, और परहेजगारी ही बेस्ट ड्रेस। ऐसा ड्रेस, इसके बारे में हम ऐसा ना हो कि हम लिबास पहने हैं लेकिन लिबास पहनते हुए भी हमें नंगा दिख रहा है, इतना टाइट या कलर भी, कभी कभी क्रीम कलर इसी तरह हम पहनते हैं तो पता नहीं चलता, ड्रेस पहन कर भी नंगा दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बारे में हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होने का है, क्योंकि हमें बाहर निकालने का भी है, इवन घर में भी तो है सब लोग ना। तो लिबास के तरफ हमें ध्यान देना है, लिबास में होकर, ड्रेस में होकर अनड्रेस ना दिखे। नेक्स्ट आयत, ये आदम के बेटों, तुम्हें शैतान बहका ना दे, जैसे तुम्हारे माता पिता को जन्नत से निकलवा दिया, वो उनका कपड़ा उतरवा दिया ताकि उन्हें उनके शर्मगाह दिखाए। बेशक वो और उसकी जाति तुम्हें ऐसी जगह से देखती है कि तुम उन्हें देख नहीं सकते। हमने शैतानों को उन लोगों का दोस्त बना दिया जो ईमान नहीं रखते। यानी शैतान ने बहका कर हमारे जो बाप आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया है। तो इसी तरह हमें भी ना बहकाए, अल्लाह ने हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि तुम अलर्ट रहो। और वो जब कोई बुराई करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने पुरखों को इसी पर पाया और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। आप कह दीजिए कि अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता, क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात करते हो जिसे तुम नहीं जानते। ये जो आयत है ये उसी टाइम जो कुरैश, मक्का के कुरैश जमाने जहालियत में, वो लोग तवाफ जब करते थे या हज के टाइम में कपड़ा नहीं पहनते थे, विदाउट ड्रेस तवाफ करते थे। तो और इसे वो नेकी भी समझते थे, और वो क्या कहते थे कि हमारे बाप दादा भी इसी तरह किया और अल्लाह ने इसी का ही हुक्म दिया ना, यही दीन है इसीलिए तो हम करते हैं, इसी में ही नेकी है। लेकिन ये क्यों कहते थे? ला इल्म के वजह से, वो नादान थे, जाहिलियत में थे, जानते नहीं थे। अल्लाह कभी बुराई का हुक्म नहीं देता, क्योंकि उन लोगों ने भी, वो कुरैश जिन लोगों ने नांगा तवाफ करते थे, वो लोगों ने उसी टाइम अल्लाह के घर के सामने इसी तरह जाते थे, लेकिन मार्केट प्लेस में नहीं जाते, रिलेटिव के घर में इसी तरह नहीं जाते थे, तब वेल ड्रेस्ड होके जाते थे। तो जो अगर नेकी है, अगर अच्छा है नेकेड रहना, तो तुम रिलेटिव के घर उसी तरह क्यों नहीं जा पाते?
अगर रिलेटिव के घर उसी हाल हुलिया में नहीं जा पाते तो अल्लाह के घर में कैसे आ पाते? ये अल्लाह का हुक्म कैसे हो सकता है? अल्लाह तो इसी तरह, ये तो बुरा है, तुम भी जानते हो। आदम अलैहिस्सलाम भी जब ड्रेस निकल गया, उन्होंने भी पत्तों से खुद को ढका, खुद को कवर की, यानी कवर रहना यही इंसान का फितरत में है, ये अच्छा है, ये तुम भी जानते हो। तो अगर ड्रेस उतार देना ये बुराई है, तो ये बुराई का हुक्म अल्लाह नहीं देता, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता है। तो ये आयत में ये समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 29। अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता, लेकिन किसका हुक्म देता है? ये आयत में है। आप कह दीजिए कि मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया है और हर सजदा के वक्त अपने चेहरे को सीधी दिशा में कर लो और अल्लाह के लिए दीन को खालिस करके उसे पुकारो, उसने जैसे तुमको शुरू में पैदा किया उसी तरह फिर पैदा होंगे। अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता, अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है। इंसाफ ये जो आयत में है, बिलकिस्त, किस्त का मतलब क्या है? जो इबादत, इताअत, शरीयत, तमाम अहकाम जो है वो सारे, तो अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है और चेहरे को सीधा दिशा, यानी जिस्मानी, इन्नी वजह तो वजह लिल्लाजी फतरस समावाती, हम कहते हैं ना, इसी तरह। और दीन को खालिस यानी रूहानी तरफ से, रूहानी तौर से इखलास के साथ। तो ये जो अल्लाह ने जो इंसाफ का हुक्म दिया है, क्या हम और आप ये महसूस करते हैं? और हम और आप क्या इंसाफ, अल्लाह ने जो इंसाफ का हुक्म दिया है वो हम करते हैं? ये हमें मुहस्बा करने का है। फिर नेक्स्ट आयत 30, और अल्लाह ने कुछ को हिदायत दी और कुछ गुमराही के मुस्ताहिक बन गए। उन्होंने अल्लाह के सिवा शैतानों को अपना दोस्त बना लिया और सोचते हैं कि वो हिदायत पर है। हम भी मुहस्बा करें, हमने किसे दोस्त बनाया है? हम कैसा हूँ, हमारा सोच क्या है? हम हिदायत पर हूँ, इसी तरह सोच में बहुत इत्मीनान में हूँ, हम जिस तरह चल रहे हैं, हमारा जो इबादत है, अकीदा है, या जो डीलिंग्स है दूसरे के साथ, वो कुरान और हदीस के मुताबिक है? अल्लाह क्या हुक्म दे रहे हैं? अभी भी आगे की आयत में भी हम देखेंगे, पिछले सूरा में भी अल्लाह बहुत सारे चीज जो हलाल है और जो हराम है, जो करने का है, नहीं करने का है, अल्लाह ने क्लियर, बहुत सादा लैंग्वेज में बता दिया है। नेक्स्ट आयत, ये आदम के बेटो, मस्जिद में जाने के हर वक्त अपना कपड़ा अपना लो और खाओ पियो और इसराफ ना करो, बेशक जो इसराफ करते हैं अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता। यहाँ भी आदम अलैहिस्सलाम, यानी पर्टिकुलर जो ईमान वाला, इससे नहीं कहा जा रहे हैं, आदम की बेटो यानी तमाम बनी आदम को, कि मस्जिद में जाने से हर वक्त अपना कपड़ा अपना लो, यानी प्रॉपर ड्रेस जो पिछला आयत में भी देखा ना, शर्म का ढकना वो तो है ही, बट उसके साथ जीनत, ये आयत में भी जीनत वर्ड यूज हुआ है। जीनत यानी पूरा लिबास, सिर्फ शर्म का ढकना ही नहीं। और खाओ पियो, यानी अल्लाह का तुम्हारा ये नंगा, ये बदहाली, ये रूखा सूखा रहना, पाक रोजी से महरूमी, ये पसंद नहीं है, लेकिन हद के अंदर रह के करो, इसराफ भी ना करो। दीन इस्लाम एक बैलेंस दीन है, बैलेंस में रह के तुम अपना लाइफ लिव करो। नेक्स्ट आयत से, जो आयत नंबर 32 से 39 तक और एक रुकू शुरू हो रहे हैं, फोर्थ रुकू। इसमें मेन चीज क्या है कि रसूल, अल्लाह ने रसूलों को भेजे हैं कि इंसान की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए। आयत नंबर 32, ये रसूल आप कहिए कि उस जीनत को किसने हराम किया है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा किया है, और पाक रिज्क को आप कहिए कि वो दुनियाई जिंदगी में उन लोगों के लिए है जिन्होंने यकीन किया, खास करके क़यामत के दिन में उन्हीं के लिए है। हम आयतों का इसी तरह तफसीली बयान कर रहे हैं उनके लिए जो इल्म रखते हैं। अब कहिए कि मेरे रब ने सभी खुले और छिपे फहश बातों को हराम किया है। तो क्या क्या चीज हराम है, जस्ट काउंट कीजिए। अल्लाह ने, हम कुरान में इंस्ट्रक्शन है ना, क्या हलाल, ये फुरकान है, हम हर चीजें को फर्क करते हैं, और अल्लाह ने इंस्ट्रक्शन दिया है क्या हलाल और क्या हराम। यहाँ भी अल्लाह ने कुछ चीज बता रहे हैं।
मेरे रब ने सभी खुले और छिपे फुहुश बातों को हराम किया है। नंबर 2 गुनाह को, नंबर 3 नाहक जुल्म करने को, नंबर 4 अल्लाह के साथ किसी शिर्क करने को जिसके उसने कोई दलील नहीं उतारी, और नंबर 5 अल्लाह पर नामालूम बातें बोलने की। जैसे पहले बोला था ना कि अल्लाह ने ये इस चीज का ये बुराई का हुक्म दिया, अल्लाह ने बुराई का हुक्म नहीं देता, तो जो नामालूम बातें मत बोलो। नेक्स्ट आयत जो है, और हर उम्मत का एक मुकर्रर वक्त है, फिर जब उनका मुकर्रर वक्त आ जाए तो ना एक पल की देर होगी ना सवेर, यानी हर चीजें का एक फिक्स टाइम है, वो टाइम जब आ जाएगा वो काम भी होकर रहेगा। ये आदम के बेटो, अगर तुम्हारे पास तुम में से मेरे रसूल आए जो तुम्हारे सामने मेरी आयतों का बयान करे, तो जो तकवा बरतेगा और सुधार कर लेगा उन पर ना कोई डर होगा ना दुखी होंगे। तो यहाँ हमें हमारे लिए करने का काम क्या है? तकवा इख्तियार करना और खुद का इस्लाह कर लेना। अल्लाह ने जो रसूल भेजा, अल्लाह ने वादा भी क्या लिया, एक तो रसूल को मानना है, नंबर 2 मदद भी करना है। सिर्फ हमने मान लिया इतना ही नहीं, रसूल का काम में रसूल को मदद भी करना है। और ये आयत में हमें करने का काम कि तकवा इख्तियार करना और इस्लाह कर लेना, सुधार कर लेना। और जिन्होंने हमारी आयतों को नकारा और उनसे तकब्बुर किया वही जहन्नमी है, वही उसमें हमेशा रहेंगे। तो यही काम तो इब्लिस किया था, उसने अल्लाह का जो हुक्म उसका फरमाबरदारी नहीं किया और तकब्बुर किया। इब्लिस ने अल्लाह को इनकार नहीं किया लेकिन उनका नाफरमानी की, उनका हुक्म का नाफरमानी की। हम भी कोई अल्लाह को इनकार नहीं करते, हाँ, अल्लाह है, अल्लाह एक है, सब कुछ मानते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म देखो, इब्लिस इतना वो आलिम थे, इतना इबादत गुजार थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म का एक नाफरमानी उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आज दुनियादारी जिंदगी में हमें भी लगता है हम बहुत इल्म हासिल कर ली, बहुत कुरान ये सब कुछ सीख लिए, जान लिए हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल तकब्बुर नहीं करने का है। जब तक हमारा आखिरी सांस अगर ईमान के हलक में होगा, कब्र उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टाइम अगर हम ईमान के हालत पर हूँ तो वही फायदामंद हुआ। तो बाकी अभी जो जिंदगी है, अभी हमारा कोशिश का जिंदगी है, कोशिश में लगे रहें, लेकिन तकब्बुर का छींटा भी अंदर आने ना दे। तकब्बुर किया पर्टिकुलरली इल्म का, इब्लिस भी बहुत आलिम थे ना, जीन होके फरिश्तों के दरमियान वो रहते थे, लेकिन उसका तकब्बुर के वजह से उसका अंजाम क्या हुआ, अल्लाह को डिनाई नहीं किया, बट एक हुक्म का नाफरमानी किया। तो अल्लाह हमें भी कितना हुक्म दिया है, हमसे भी नाफरमानी हो जाता है, अल्लाह हमें बार बार माफ कर रहे हैं, हमें मोहलत दे रहे हैं, तो अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं अल्लाह हमारा भी इस्लाह करा दे, ईमान के हालत में हमें जिंदा रखे और ईमान के हालत में ही हमें खत्मा नसीब फरमाए। कहने में सुनने में कुछ भी गलती हो तो अल्लाह माफ करे, कहने से सुनने से ज्यादा अमल का तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे का आयत हमारा प्यारे टीचर और हमारे सिस्टर फरहत पढ़ रही हैं। फरहत प्लीज।